Hello everyone, welcome back to your very own Medico Legal channel, Medico Legal Expert. On the onset, first I would like to say sorry to all of you for my absence, which was on medical grounds and my personal issues. But I assure you that this channel of yours is going to be ongoing with your daily bunch, your basket of knowledge. I will see to it that I reach you regularly henceforth. Also, I understand that this gap has been very long, so I'm sure you've lost track of what we were doing. So just to brief you, we have actually started our episodes on the POCSO Act. We finished with the first episode. This is going to be our second episode. And I request all of you kindly have a look at the first episode so that you have a continuity in what we are going to do. And this episode is going to give all of you doctors a very important insight of what is our role, what is our responsibility, how do we handle a case, and how do we go ahead. So friends, enjoy, be a part of it, like, share and subscribe for sure, and be here every weekend. The Medico Legal Expert is here just for you. Thank you. So, just revamping what we have done last week. So POCSO is protection of children against sexual offenses, and very importantly in POCSO is that it is a collaborated effort by various agencies. So role of the state agencies. It makes different agencies of the state such as police, judiciary, child protection machinery collaborators in securing justice for a sexually abused child. इसका मतलब ये है कि ये ऐसा एक्ट है जिसमें अलग अलग जो फैकल्टीज़ हैं, जैसे पुलिस हो गया, जुडिशरी हो गए या चाइल्ड प्रोटेक्शन मशीनरी हो गई, ये सभी लोग साथ में आके कोलैबोरेट होके एक बच्चे के लिए जस्टिस के लिए फाइट करते हैं. सो हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जो पॉक्सो एक्ट है इसमें इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो वो चाइल्ड है. बच्चे के इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको जितना चाइल्ड फ्रेंडली, उसको कंफर्टेबल जो एटमॉस्फेयर होता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स हो या इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट हो या वापस उसका रीविक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये सभी चीज़ों के लिए, ये बच्चों के लिए स्पेशल कोड किया जा रहा है जहाँ पे उनके कितने कॉम्पनसेशन मिलने चाहिए. ये कॉम्पनसेशन कोड डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन वो बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंसेस जो लगते हैं, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए जो लगता है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पॉक्सो में समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे बच्चे के कंफर्ट जोन में सभी काम होते हैं, वो फिर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रोसीजर हो या जो भी आगे उसकी ट्रीटमेंट की होगी. सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हाई ऑल ऑफ अस आर हियर, द रोल ऑफ डॉक्टर्स इन प्रोवाइडिंग केयर इन द प्रेजेंट लीगल फ्रेमवर्क. इसका मतलब आज की जो लॉज लागू है उस हिसाब से हम डॉक्टर्स का क्या रोल बनता है. सबसे इम्पॉर्टेंट, no hospital under the jurisdiction of Indian Constitution can refuse to admit the victim of child sexual abuse for examination and treatment ever. इसका मतलब ये है कि कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डॉक्टर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एक बच्चे को जो विक्टिम है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का, उसकी एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता. बहुत बार हम लोगों को लगता है कि अगर एक बच्चा सेक्सुअल अब्यूज़ से आया हुआ है तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजो, वहीं पे होगा इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है. और ये इश्यू जो है ये फिर से डिस्कस हुआ है सेक्शन 23 ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट which inserts section 357C into the Code of Criminal Procedure 1973 and very clearly says that all hospitals, public or private, whether run by central government or state government, local bodies or any other person, shall immediately provide first aid, medical treatment free of cost to the victims of any offence which is covered under section 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D or 376E of the IPC, and shall immediately inform the police after such incidents. इसका मतलब ये है कि आपका हॉस्पिटल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, स्टेट रन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट रन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डॉक्टर चलाता हो या कोई भी चलाता हो, ये पेशेंट को देखना, ये बेबी को ट्रीट करना, उसका आगे की जो भी है मेडिकल मैनेजमेंट करना,
फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूरी है। सेकेंड, पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम लोगों को लगता है कि ये पॉक्सो में आने वाले बच्चे सिर्फ शायद गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या सिर्फ शायद पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। फैक्ट ये है कि ये इवन जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं या अपना कोई भी रेगुलर डॉक्टर के पास जा सकता है। और जब भी ये जाता है, इसको रिपोर्टिंग करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। रिपोर्ट करना या नहीं करना, ये चॉइस आपके पास नहीं है। So no doctor or healthcare professional should demand from the child abuse victim any legal documents, records, or force them to comply with any legal procedure or to provide any documentation before initiating the treatment or examination. इसका मतलब ये है कि कोई भी डॉक्टर अगर कोई बच्चा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का आता है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो बच्चे को ट्रीट करें, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दें, ना कि उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे। कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई प्रोसीजर मैंडेटरी नहीं हो सकता। सबसे मैंडेटरी एक ही चीज़ है, वो है ट्रीटमेंट और एग्जामिनेशन। सो लीगल प्रोसीजर्स कैन बी डन लेटर। जो भी लीगल प्रोसीजर करना है वो बाद में किया जा सकता है। FIR भी बाद में लॉन्च हो सकता है, लेकिन इमीडिएट मेडिकल केयर वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको कहीं भी आप ये कोई भी रीजन से नकार नहीं सकते। आपको वो करना एब्सोल्युटली जरूरी है। It is now mandatory for doctors to register or report a medico-legal case in all incidents of child sexual abuse. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बच्चा आता है और अगर ऐसा लग रहा है कि ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का केस है, तो उसका मेडिको लीगल केस बनाना आपका ड्यूटी है। ड्यूटी का मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया और बाद में पता चला कि ये बच्चे के साथ अब्यूज हुआ था, सो फेलियर ऑफ रिपोर्टिंग could result in 6 months imprisonment and or fine under section 21 of the POCSO Act 2012। यानी अगर हमने रिपोर्टिंग नहीं किया कोई भी रीजन से, तो रिपोर्ट नहीं करने का जुर्माना होगा 6 महीना इम्प्रिजनमेंट और फाइन अंडर सेक्शन 21 of POCSO Act. All hospitals in India, whether government run, private, have to provide first aid or immediate medical treatment free of cost to the victims of all kinds of sexual offenses, including child sexual abuse victims included in this provision. इसका मतलब ये है कि कोई भी हॉस्पिटल हो, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया, ये रिपीट कर रही हूँ पॉइंट, ताकि ये हम लोगों के दिमाग में एकदम फिट हो जाए कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या कौन दे रहा है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ है कि ये बच्चे को फर्स्ट एड और इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये बच्चा ही नहीं, एनी सेक्सुअल ऑफेंस जिसके साथ भी हुआ होगा, उन सबको ये रूल लागू होता है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एंड सेक्शन 166A of the IPC 1861 expressly mentions that no hospital, whether private or public, can deny treatment to a rape victim. यानी any rape victim, सिर्फ child नहीं। Section 166A of the Indian Penal Code mandates the government medical officer or duty to examine the rape victim without fail. This treatment should be provided immediately, free of cost. If a hospital staff is involved in rape, then law dictates a punishment of minimum 7 years. यानी सब एक्ट में वेरी क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि जो भी एग्जामिनेशन है, ट्रीटमेंट है, फर्स्ट एड है, सब कुछ इसी को फर्स्ट इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, और ये करना मैंडेटरी कंपल्सरी है। इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अगर होगा नहीं, कुछ नहीं, करना ही है। It is mandatory that the medical examination must be conducted only by a registered medical practitioner within 24 hours from the time of receiving information about the offense. कोई भी registered medical practitioner, कोई भी medical practitioner ये एग्जामिनेशन कर सकता है। 24 घंटे के अंदर उनको करना है। 24 घंटे के अंदर जब उनको पता चलता है कि ऐसा कुछ है, तो उनको करना चाहिए। इन केस
बच्चा लड़की है, विक्टिम लड़की है, तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड बाय अ वुमेन डॉक्टर। लेडी डॉक्टर ने ये बच्ची को एग्जामिन करना चाहिए। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त बच्चा चाहता है कि उसका पेरेंट या जिस पे भी वो भरोसा करता है वो वहाँ पे रहे, तो उनको वहाँ पे रखना ज़रूरी है, यानी उनकी पेरेंट या उनके कॉन्फिडेंस वाला कोई अटेंडेंट। इन केस अगर कभी पेरेंट अवेलेबल नहीं है या कोई और अवेलेबल नहीं है, तो वो हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट किसी लेडी को नॉमिनेट कर सकता है। मेडिकल इंस्टीट्यूशन के जो हेड होते हैं वो कोई लेडी को नॉमिनेट कर सकते हैं कि ये लेडी के प्रेजेंस में ये गर्ल चाइल्ड का एग्जामिनेशन किया जा सकता है। अभी हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, इनका एग्जामिनेशन करने के रोल्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट 2 रोल्स हैं। फर्स्ट, कि ये एग्जामिनेशन से एविडेंस मिलेगी कि इस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, और सेकंड, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि उनको बच्चे को देखते वक्त कौन से इंजरीज, मार्किंग्स, ब्रूसेस जो भी दिख रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। इसी के वजह से 24 घंटे के अंदर का जो टाइमलाइन दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि वो टाइम जब लैप्स हो जाता है तो बहुत सारा एविडेंस निकल जाता है या बहुत सारे एविडेंस मिस हो जाते हैं, और अगर किसी बच्चे के साथ किसी ने ये गलत किया है तो उसको बचने की कोई स्कोप नहीं मिलनी चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन इज मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। तो क्या होना चाहिए मैनेजमेंट में, ये हम लोगों को समझना ज़रूरी है एज डॉक्टर्स एंड एज प्रैक्टिशनर्स। So every case of sexual assault is a medical emergency for which free treatment is mandatory at government or private facilities. No document or precondition is necessary for providing emergency medical care. यही चीज़ हमने अभी लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया। ये इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बार बार सुनने से हम लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा कि सेक्सुअल असॉल्ट का बच्चा हो या एडल्ट हो, अगर वो हमारे पास आता है तो उसको मेडिकल इमरजेंसी के हिसाब से ट्रीट करना है, उसको फ्री ट्रीटमेंट देना है। आपका सेटअप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और आप कोई भी डॉक्यूमेंट या प्री कंडीशन नहीं पूछ सकते, जैसे ये बच्चे के साथ कोई नहीं है, अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। कुछ भी रहे, आपको इसको ट्रीट भी करना है और पुलिस इंटीमेशन भी करना है। A victim of child sexual abuse may approach a health facility directly for treatment with a police requisition after police complaint or with a court directive. यानी बच्चे के पास चॉइस है कि ऐसा कुछ होने के बाद वो सबसे पहले हॉस्पिटल आ सकता है ट्रीटमेंट के लिए, या तो वो पुलिस के पास जा सकता है, कंप्लेंट ड्राफ्ट कर सकता है, पुलिस का रिक्विजिशन लेके आ सकता है, या तो कोई कोर्ट का डायरेक्टिव हो सकता है। कोई भी चलेगा, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट बच्चे को सबसे पहले अटेंड करना और उसका ट्रीटमेंट करना। The hospital is bound to provide treatment and conduct a medical examination with consent of the child, parent, guardian depending upon the age of the child. यानी ट्रीटमेंट देना और मेडिकल एग्जामिनेशन करना, उसमें अगर कंसेंट की ज़रूरत है तो बच्चे का, या तो बच्चे के पेरेंट का, या तो बच्चा जिस पे भरोसा करता है उस पे, उसका कंसेंट किसी का भी लिया जा सकता है डिपेंडिंग बच्चे का एज कितना है। The victim may or may not want to lodge a complaint but requires medical examination and treatment. In such cases, the doctor is bound to inform the police as per law. अगर बच्चा बोलता है कि डॉक्टर आप सिर्फ मुझे मेरा ट्रीटमेंट करिए और मुझे छोड़ दीजिए, बच्चे का ट्रीटमेंट करना डॉक्टर का ड्यूटी है, और एक ड्यूटी है कि डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करेगा ही। इन्फॉर्मिंग द पुलिस इज मैंडेटरी, सो दैट इज नॉट अ चॉइस. So, however, neither the court nor the police can force the survivor to undergo medical examination. इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे ने बोल दिया कि मुझे एग्जामिनेशन नहीं करवाना, मुझे सिर्फ ट्रीटमेंट करना है, और उसका कंसेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, तो ना कोर्ट और ना ही पुलिस कोई भी फोर्स नहीं कर सकता बच्चे को कि उसने करना ही चाहिए एग्जामिनेशन, उसने केस फाइल करना ही चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है।
बस मेडिकल ट्रीटमेंट देना, फ्री ऑफ कॉस्ट देना, ऑन टाइम देना, एविडेंस कलेक्ट करना, ये सब कंपलसरी है. If the victim does not want to pursue a police case, a medico-legal case must be made and an informed refusal documented. इसका मतलब अगर बच्चा बोलता है कि आप सिर्फ मेरी ट्रीटमेंट करिए, मेरा कोई केस फाइल नहीं करना है, फिर भी एक डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म करना उसका ड्यूटी है. उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना ही है. और पेशेंट से आप इन्फॉर्म्ड रिफ्यूज़ल डॉक्यूमेंटेड कर सकते हो कि पेशेंट को, बच्चे को पुलिस केस फाइल नहीं करना है, तो उसका एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट आ सकता है. जैसे हम लोग कुछ करने के लिए कंसेंट लेते हैं, वैसा ही उसका कंसेंट लेना पड़ेगा कि वो केस फाइल नहीं करना चाहता. If the victim has reported with the police requisition or wishes to lodge a complaint later, the information about the MLC number and the police station must be recorded. अगर बच्चा आज बोलता है मुझे केस फाइल नहीं करना है, बहुत बार हम लोग देखते हैं पेशेंट्स बोलते हैं आज हमको केस फाइल नहीं करनी है, और फिर 15 दिन बाद उनको लगता है कि नहीं मुझे फाइल करना चाहिए था. तो जब भी वो आएंगे उनको MLC नंबर, क्योंकि हमने तो MLC कर दिया है, हमको तो MLC करना ही है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो वो MLC नंबर और पुलिस स्टेशन का जो भी नंबर होगा या पुलिस स्टेशन का नाम जो भी होगा वो बच्चे को देना हम लोगों को अनिवार्य है. तो बच्चे को रेफरेंस मिलेगा कि ये केसेस ऑलरेडी उनके नाम पे रजिस्टर्ड है. अभी मोडालिटीज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, कौन से डिफरेंट टाइप्स है जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है. सो रोल ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012. डॉक्टर्स हैव अ डुअल प्ले. जस्ट नाउ मैंने एक्सप्लेन किया कि 2 रोल्स होते हैं हमारे पॉक्सो एक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट इज दे आर इन अ पोजिशन टू डिटेक्ट दैट अ चाइल्ड इज बीन और बीइंग अब्यूज्ड. यानी बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा जब अपने पास आता है तो ऐसा लगता है कि बच्चे को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसा लग रहा है, या बच्चा डरा हुआ लग रहा है, सहमा हुआ लग रहा है. कुछ तो देख के डॉक्टर्स समझ जाते हैं कि कुछ तो सही नहीं है. सो इन दैट केस ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे वो बच्चे को देख के डॉक्टर सस्पेक्ट कर सकता है कि इसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है. ही कुड बी अ विक्टिम ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. The registered medical practitioner rendering medical care shall also do the following. पहले collect evidence through medical examination. Thorough medical examination यानी proper medical examination करना, जो हर registered medical practitioner की ड्यूटी है. बच्चे को जो भी इंजरीज होंगे, वो फिर फिजिकल हो, जेनाइटल हो या उसको मेंटली हो, वो सभी इंजरीज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. कंडक्ट एज असेसमेंट ऑफ द विक्टिम, अगर ज़रूरी रहे तो एज असेसमेंट. प्रोफाइलैक्सिस फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इंक्लूडिंग HIV. प्रोफाइलैक्सिस क्योंकि बच्चे का एक्सपोजर हमको पता नहीं कौन से डिजीज़ को हुआ होगा, और अगर बच्ची प्यूबर्टल एज की है तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन उसके साथ और उसके पेरेंट के साथ डिस्कस करना भी ज़रूरी है. बेसलाइन इवैल्यूएशन उसका मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्योंकि बहुत बार जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इट्स ओके, बच्चे को तो कुछ समझा नहीं है, वो छोटा सा है, लेकिन ये पता नहीं होता कि मेंटली वो बच्चे के साथ क्या फीलिंग हो रही है, बच्चा कहाँ अपसेट हो रहा है. तो उसका बेसलाइन इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है. ये बच्चे का अगर आज आपने ट्रीटमेंट कर दिया, आपने MLC कर दिया, बच्चा घर चला गया, कोई केस नहीं हुआ, कुछ नहीं, लेकिन इसको मंथली फॉलोअप करना 6 महीने के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार ये बच्चों को बाद में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं. इसके लिए आपको, अगर आप रेगुलरली ये बेबी को देखते रहेंगे तो ही आप समझेंगे कि कुछ तो डिफरेंस है. हम लोगों को फैमिली काउंसलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली को समझना ज़रूरी है कि बच्चा गलत नहीं है, गलत करने वाला गलत है. फैमिली बच्चे को सपोर्ट करे, ये बहुत ज़रूरी है. बच्चे को और विक्टिमाइज नहीं करे, ये बात समझना भी ज़रूरी है. प्रोवाइड adequate assistance and cooperation in the court during interviewing the child and testifying in court. यानी जब आपने ये बच्चे को पहले एग्जामिन किया है तो आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है, आपने सभी उसके जो इंजरीज है वो लिखे हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको एविडेंस के लिए कोर्ट बुलाया जाए.
और उस टाइम पे बच्चे के इंटरव्यूइंग के टाइम आप टेस्टिफाई करिए, सही एविडेंस दीजिए। वो एविडेंस ऐसे दीजिए कि जिसने भी गलत किया है वो ज़रूर उसके लिए उसको पनिशमेंट मिले। There are at least three different circumstances. There is no direct allegation, but when doctor may consider the diagnosis of sexual abuse and have to ask questions to the parents and child. हम लोगों को एज डॉक्टर्स बहुत बार जब बच्चे के बिहेवियर देखते हैं या सर्कमस्टांसेस देखते हैं तो हम लोगों को डाउट होता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है, कुछ तो सही नहीं है। ये शायद डॉक्टर्स को गॉड गिवन गिफ्ट है कि बहुत सारी चीज़ें उनको एक इंटरनली पता चल जाता है पेशेंट के बारे में। सो दीज इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड, यानी ये हो सकता है लेकिन होना ज़रूरी नहीं है कि जब चाइल्ड कंप्लेन करे that might be directly related to the possibility of sexual abuse, such as a girl with a vaginal discharge. बहुत बार हम लोगों को लगता है कि vaginal discharge है कि बच्चे को अब्यूज तो नहीं हुआ है, ज़रूरी नहीं है। अब्यूज के और भी कारण vaginal discharge के और भी कारण हो सकते हैं। तो हर बार हम लोग हमारे माइंड को वन ट्रैक नहीं रख सकते, लेकिन सोचना पड़ेगा। कभी कभी ये vaginal discharge can be because of sexual abuse also. When a child has a complaint that is not directly related to the possibility of sexual abuse, such as abdominal pain or encopresis. बहुत बार बच्चे सिर्फ पेट में दर्द है बोलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे के साथ अब्यूज़ हो रहा है और उसको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है और वो पता नहीं कर रहा है कि कैसे बोला जाए। When the child has no complaint but an incidental finding such as an enlarged hymenal ring makes the doctor suspicious. तो एज अ डॉक्टर जब आप बिलो 18 के बच्चों को देख रहे हो, उनके जो भी कंप्लेंट्स होंगे, तो डेफिनेटली आपको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एक पार्ट अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। आपका जो मिस करना है वो बच्चे के लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है। और नाउ वी कम टू द मैंडेटरी रिपोर्टिंग पार्ट. When a doctor has a reason to suspect that a child has been or being sexually abused, he or she is required to report this to the appropriate authorities. That is police or relevant person within his or her organization, who will then have to report it to the police. अगर बच्चे को आपने देख लिया, आपको लग रहा है कि इसको अब्यूज़ है, तो आपको ये रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो डायरेक्ट पुलिस को या तो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में बताइए, जो पुलिस के पास उसका रिपोर्ट डाल सकती है। एज जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोटोकॉल होता है, तो वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जा सकता है। लेकिन द पंच लाइन इज आपको रिपोर्टिंग करना ही है। फेलियर टू डू सो, अगर आपने नहीं किया तो आपको जेल हो सकती है 6 महीने के लिए, या तो फाइन उसके साथ हो सकता है। ये आज का पार्ट था जहाँ पे हम लोगों ने सबसे ज़्यादा डॉक्टर पे एम्फसाइज किया है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोग इस पार्ट को प्रॉपरली देखेंगे तो डेफिनेटली आपके रोज प्रैक्टिस में जब भी एक बच्चा आएगा आपके ध्यान में रहेगा। आप कभी पॉक्सो जैसे एक्ट में प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स में नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही। Thank you very much for being a lovely audience. Join me every week, and don't forget, like, share and subscribe to your very own channel, that is Medico Legal Expert, so that you are always legally right in your medical practice.